ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب؟ 12 سے جمیل اختر۔ 12 سے؟ جی اچھا، ہاں صاحب، پوچھو صاحب۔ آپ فرمائیں، خیریت سے ہیں؟ ہاں، اللہ کرم، سب ٹھیک ہے اللہ۔ اچھا، کس جگہ آپ؟ کہاں، راجستھان سے؟ ہاں، ہلو، ہاں، میں کہہ رہا ہوں راجستھان سے کس جگہ سے؟ کوٹا میں ہے۔ اچھا، کچھ بات چیت آپ کی جو ہے نیٹ پر آتی تو اس کے تعلق سے میں نے سوچا ذرا خیریت پوچھ لیں۔ اچھا، کون سی والی؟ سرکار اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کہ انہوں نے یہ غلط کہا، انہوں نے وہ غلط کہا، تو اس لیے ذرا سا میں نے پوچھا کہ ذرا دیکھیں۔ دیکھو، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، چاہے دیوبند کے ہوں یا بریلی کے، سب سے ہو جاتی۔ قرآن حدیث کو دیکھنا چاہیے سب سے پہلے۔ دیوبند سے اور بریلی سے سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ ایسا جملہ ہے جیسے آپسی لڑائی ہو دو باتوں کی۔ یہ ایسے نہیں چلے گا۔ دیوبندیوں نے جو ہے دیوبندیوں نے جو ہے رسول پاک کی بارگاہ میں گالیاں دی ہیں۔ بریلی شریف کسی فرد نے، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، کسی عام مسلمان نے بریلی شریف سے تعلق رکھنے والے نے آج تک کسی بزرگ کی تک توہین نہیں کی، جا کے رسول پاک کی۔ آپ نے یہ بات کہی کہ دونوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ ایسا لگتا ہے جیسے آپسی جھنجٹ دونوں سے ہو جاتا، کبھی کچھ ادھر کہہ دیا، کبھی کچھ انہوں نے کہہ دیا۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے بریلی دیوبند سے۔ بریلی سے سن لیجیے، دیوبند کا معاملہ جو ہے اللہ اس کے رسول پر حملہ ہے، اور بریلی والے اپنے اللہ کا بندہ اور رسول پاک کی امت میں ہونے کے ناطے وہ اس کی دفاع کرتے ہیں، نہ کہ وہ کوئی مدعی ہیں۔ اچھا، یہ بتاؤ، ناز شریف اگر ہو رہی، ناز شریف کو اردو شان میں پڑھ رہا ہے جی، تو اگر کوئی اس وقت عالم کا استقبال کرے، ناز شریف بند ہو جائے، تو ایسے شخص کو کیا کہو گے؟ دیکھیے ہماری بات سنو آپ۔ نہیں، یہ بتاؤ، جو ناز شریف پڑھ رہا ہو، ناز شریف بند کر دے کہ عالم کا استقبال ہو، نعرہ تکبیر، اب عالم کا استقبال ہو رہا ہے، ناز شریف بند ہو گئی۔ آپ ہماری بات سنیں۔ نہیں، اس کا جواب دو، نہیں، پہلے اس کا جواب دو۔ ایسے شخص کو کیا، جو ناز شریف بند کروا دے، ناز شریف بند ہو جائے اس کی وجہ سے، ایک مولوی کی وجہ سے، اور اس کے استقبال میں لوگ لگ جائے، مولوی بھی ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہن رہا ہو، 50,000 روپے لے کے تقریر کرنے آ رہا ہو، جی، کیا ایسے شخص کا استقبال ہونا چاہیے ناز شریف میں؟ آپ ہماری بات سنیے، آپ کہہ چکے ہماری بات سنیے۔ ٹخنوں سے نیچا پاجامہ رکھنا اور 50,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ نذرانہ لے کے طے کر کے آنا، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ؟ ہاں، سن رہے۔ اور یہ باتیں ہم اس وقت کریں گے جب آپ پہلے بنیادی بات پر بات کریں گے کہ بریلی والے بھی غلطی کرتے ہیں اور دیوبند والے بھی غلطی کرتے ہیں۔ دیوبند والوں نے جو غلطیاں کی اس کے تعلق سے آپ کیا مانتے ہیں، اس لیے کہ عرب و عجم کو ان پر کفر کا فتویٰ قطعی ہے۔ آپ پہلے یہ بات بتائیے۔ حضرت حسین منصور اللہ کو آپ کیا مانتے ہو؟ جی، کس کو نام دہرائیے؟ حضرت حسین منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ جی، خوب نام سنا، بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ کیا ان پر کفر کا فتویٰ لگا تھا کہ نہیں؟ ان پر جو کفر کا فتویٰ لگا تھا وہ بظاہر لگا تھا، یاد رہے۔ نہیں، لگانے والے کون تھے؟ لگانے والے عالم تھے کہ نہیں؟ نہیں، لگانے والے عالم تھے نا؟ لگانے والے عالم تھے، لیکن ان وہ بڑے بڑے عالم تھے، آج کے دور سے بڑے عالم تھے، حسام الحرمین سے بڑے عالم وہ تھے اس زمانے کے۔ ہماری بات سنیے، یہاں بڑے چھوٹے کی بات بعد میں ہوگی۔ نہیں تو وہ بھی عالم تھے، حسام الحرمین کے فتوے والوں سے بڑے عالم تھے، منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے والے بھی عالم ہوتے، اگر صحیح بات کہہ رہے ہوتے تو ان کی بات مان لی جاتی۔ حسام الحرمین بڑی کتاب ہے، عالموں نے فتویٰ تو لگایا تھا۔ بتا رہا ہوں، آپ اشرف علی کے تعلق سے، رشید احمد گنگوہی کے تعلق سے پورے عرب و عجم کا اجماع ہے اس بات پر کہ وہ قطعی کافر ہوں۔ تو حضرت حسین منصور اللہ پر اجماع کیوں نہیں ہے جب ان کو مسلمان تم مانتے ہو اور خالی ٹخنے پر اعتراض کرتے ہو؟ نہیں، حضرت حسین منصور اللہ پر کیوں فتویٰ نہیں ہے؟ ارے ہماری بات سنیے، انہوں نے کہا کہ آج بھی کوئی سرکار کے بعد آخری نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ قطعی کفر ہے۔ کس نے کہا کہنے کی بات کرتے ہیں؟ جو بھی ایسا کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو آپ بتا رہے ہیں۔ نہیں، یہ کہیے قاسم نانوتوی کافر نہیں، کسی نے بھی ایسا، کوئی اگر ایسا کہے گا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ اڑنتو بات نہ مت کیجیے، نامزد بات کیجیے۔ نہیں، نامزد کیسے کر دیں؟ نہیں، جس سے جو بھی کہے گا وہ جو بھی کفر بکے گا کافر ہوگا، نامزد کیوں کہ دیں؟ جو کفر بکے، میں کہہ رہا ہوں اگر یہ بات تم کہو۔ اچھا، کیا نامزد آپ کہہ سکتے ہو؟ آپ نامزد کہہ دو گے؟ آپ نامزد کہہ دو گے؟ جو یہ کہے کہ انا الحق، جو یہ کہے کہ میں خدا ہوں، آپ اسے نامزد کہہ دو گے؟ نہیں، جو انا الحق کہے آپ اسے نامزد کہہ دو کہ ہاں منصور اللہ نے انا الحق کیوں کہا، ایسا کہنے والا یہ ہے؟ انہوں نے کہا تھا اس پر بات بعد میں ہوگی، میں پہلے نہیں، کیوں نہیں، جب ان کے اوپر فتویٰ لگا تھا کفر کا فتویٰ، ان پر کفر کا فتویٰ اس کو نہیں تعلق تھا، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ بتائیے آپ، جب آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار ہے، مانتے ہو آپ؟ جی ہاں، مانتے ہیں۔ اب آپ یہ مانتے ہو کہ ہماری 12 کی مسجد میں اگر کوئی بدعقید امام آ گیا تو ہم اسے ترنت ہٹا دیں گے، ہٹا دو گے نا؟ ہٹا دیں گے۔ آپ کے پاس پاور ہے اتنا ہے؟ جی،
तो क्या अल्लाह के रसूल के पास पावर नहीं है कि आप अपनी मस्जिद के इमाम को हटा दें जो बदअकीदा हो, जैसे आप बदअकीदा मानते हो? रुक जाइए, कह जाइए, रसूल पाक तो बाद में आते हैं, वो बंदे हैं अल्लाह तबारक तआला के। आप ये बताइए, रब ताला को पूरा पावर था, उसने नहीं, अभी तो आपको इतना पावर है कि आप 12 से हटा सकते हो, तो क्या 12 में अल्लाह की कुदरत नहीं है? 12 में अल्लाह की कुदरत नहीं है? बरेली में नहीं है? नहीं, फिर नहीं, 12 में क्या अल्लाह की कुदरत नहीं है? अल्लाह की कुदरत क्या 12 में नहीं थी? अभी आपने कहा कि हम हटा देंगे, वहाँ पर क्यों नहीं कहा कि नहीं हटा पाएंगे? अल्लाह जाने। मैं ये पूछ रहा हूँ, देवबंद वालों के ताल्लुक से आप हिमायत क्यों करते हैं? टखने वाले क्यों पकड़ते हैं? अरे साहब, ये अभी वक्फ बिल का मसला आया, अभी वक्फ बिल का मसला आया, वक्फ बिल का मसला आया, पास हुए वक्फ बिल दोनों जगह से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ, विधानसभा से पास हुआ। क्या आप मुसलमान नहीं समझते देवबंद वालों को? रुपया गिरी बनना बंद कर दो, ना याद रखना, तुम अगर कहीं पास मिल गए तो तुम्हारी जान ऊंची कर दी जाएगी। कहाँ पर पता बताना, तुम्हारा पता बताना, पता बताओ कौन से मोहल्ले में, बताना जरा। मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुमसे कि तुम अशरफ अली थानवी कुफर को कुफर क्यों नहीं मानते? पता बताना जरा, पता बताओ, अपना पता बताओ, क्या कर लोगे तुम हमारा? मैं ये कह रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ जो नहीं, तुम क्या जान से मार दोगे? क्या जान से मार दोगे तुम? क्या जान से मार दोगे तुम? नहीं है, नहीं, तुम जान से मार दोगे? तुम जान से मार दोगे क्या? जान से मार दोगे? बंद कर दो। नहीं, तुम जान से मार दोगे क्या? तुम उनको जान से मार दो जो टखने। नहीं, ये बताओ तुम हमें क्या जान से मार दोगे? तुम अभी क्या कह रहे थे? कहीं मिल गए तो मैं क्या, कहीं मिल गए तो ये कर दूंगा, तुम कह रहे थे, अभी कह रहे थे कुछ। तुम भी तो कह रहे थे उसको बुलाना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं, ये बताओ तुम हमें जान से मार दोगे? अभी कुछ कह रहे थे, अभी कह रहे थे ना कि तुम मिल गए तो ये कर दूंगा। क्या तुम हमें जान से मार दोगे क्या? तुम मुझे जान से मार दोगे मगर कोई नहीं, अभी तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? क्या कहा था अभी? क्या कहा था अभी पहले? कुछ कहा था, फिर कह दूंगा। नहीं, क्या कहा था? अभी मिल गए तो मैं ऐसा कर दूंगा। आपका नंबर है 95 803 82 664, ये आपका नंबर है 95 803 82 664। इससे कुछ नहीं होता, किसी को कोई नंबर हो। नहीं, अभी आपने कहा था कहीं मिल गए तो मैं आपको ये कर दूंगा। अब अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो तुम फंस जाओगे। अब अगर मेरे साथ कुछ हो गया ना तो तुम फंस जाओगे। नंबर मैंने बोल दिया है और ये नेट में डल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बात हो जाए वो तकलीफ होती है, कुफ्र क्यों नहीं दिखलाई देता है? तुम इमाम हरम को क्या मानते हो? इमाम हरम को क्या मानते हो? आप किसी लोग हिमायत न करते? नहीं, ये बताओ, मुसलमान इमाम हरम को तुम मुसलमान मानते हो कि नहीं? तुम ये बताओ, मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान मानते हो कि नहीं? जी, मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान मानते हो कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम अशरफ अली थानवी को काफिर मानते हो कि नहीं? नहीं, मस्जिद नबवी के इमाम को क्या मानते हो? ये बताओ, मस्जिद नबवी के इमाम को क्या मानते हो? जो एक कतई कुफ्र का फतवा, उस पर तुम भागते क्यों हो? नहीं, मस्जिद नबवी के इमाम को क्या मानते हो? चलो, मस्जिद नबवी के इमाम पर तो नहीं ना फतवा कुफ्र का? अशरफ अली गुजर चुका, जिसका आलमगीर। अरे, मस्जिद नबवी के इमाम पर तो कुफ्र का फतवा नहीं है ना? नहीं मानते हो? मस्जिद नबवी के इमाम पर तो कुफ्र का फतवा नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मस्जिद नबवी वाले इमाम की बाद में बात होगी, पहले अशरफ अली। नहीं, ये बताओ, आप उसे मानते क्या हो? मानते क्या हो? नमाज होगी कि नहीं होगी उसके पीछे? नमाज होगी कि नहीं मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे? हम कह रहे हैं वहाँ की बात बाद में करूंगा मैं। नहीं, वो भी होगी। जब थानवी साहब की बात भी बाद में होगी, थानवी साहब की बात भी बाद में होगी। थानवी साहब तो जिंदा ही नहीं है, उनकी बात भी बाद में होगी। पहले जिंदाओं की बात करो। मस्जिद नबवी का इमाम जिंदा है, हरम शरीफ का इमाम अभी जिंदा है। अभी जिंदों की बात करो, मुर्दों की बात बाद में करना है। कुफ्र का फतवा देवबंद वालों को लगा, बरेली वालों को कौन सा फतवा लगा है? अच्छा, अभी वक्फ बिल पास हुआ, अभी इसमें वक्फ बिल देवबंद वालों का भी वक्फ है, इस बारे में क्या कह रहा हो? ये सही पास हुआ? अब मैं ये कह रहा हूँ अशरफ अली थानवी तो कुफ्र नहीं, ये वक्फ, अगर तुम देवबंद वालों को काफिर मानते हो, देवबंद वालों को अगर आप काफिर मानते हो, आप देवबंद वालों को काफिर मानते हो? ये बिल का सवाल कल हमारी निगाह में नहीं होगा। नहीं, आप देवबंद वालों को काफिर मानते हो? आप काफिर मानते हो क्या देवबंद वालों को? आप क्या काफिर मानते हो? आप देवबंद वालों को काफिर मानते हो? आप काफिर मानते हो क्या? आप देवबंद वालों को काफिर मानते हो? जी, काफिर मानते हो जी। तो 12 भाई में जो इमाम है काजी शेर अब्दुल कयूम साहब सदर हैं, जरा उनसे जाके कहो कि मत क्यों पढ़ा रहे हैं। तुम उसकी हमायत करो। जो 12 में काजी शेर अब्दुल कयूम साहब सदर हैं 12 भाई की मस्जिद के, वो देवबंदियों में जाके क्यों पढ़ा रहे हैं, जरा उनसे जाके कहो। उनसे पूछ लीजिए, वो जिंदा है, ये उनसे पूछिए जिंदा। नहीं, जब आप काफिर मानते हो तो आप जिन्हें सुन्नी मानते हो वो वहाँ जाके क्यों पढ़ाते हैं अब्दुल कयूम साहब? सुन्नी जाता है, उससे बात आप कर लीजिए, वो जिंदा है। नहीं, 12 भाई में क्यों जाके पढ़ा रहा है? 12 भाई में तो सब लोग देवबंद वाले हैं, सब देवबंद वाले, ज्यादातर 95% देवबंद वाले पढ़ाते हैं वहाँ पर। आप अशरफ अली थानवी को काफिर क्यों नहीं मानते? तुम देवबंद वालों को काफिर क्यों नहीं मानते? बताइए, आप नहीं बता। तुम देवबंद वालों को काफिर क्यों नहीं मानते हो? बोलो, कसम नसबी बात लिखी। नहीं, तुम देवबंद वालों को काफिर मानते हो कि नहीं मानते? आप देवबंद वालों को काफिर मानते हो? आप क्या, आप मुसलमान मानते हो? ने हम मुसलमान मानते हैं।
क्यों मुसलमान मानते हो? कतई कुफ्र का क्योंकि बारह में जो शेर काजी हैं अब्दुल कय्यूम साहब, वो सब देवबंद वालों में रहते हैं। 12 भाई में पढ़ाते हैं, सब देवबंद वाले हैं। 90% देवबंद वाले हैं 12 में। तुम मुसलमानी मामले में 12 में ईदगाह में देवबंदी जाते हैं, 90% देवबंदी जाते हैं, पढ़ते हैं। उसके वो सदर हैं, वो इमाम है, वो काजी अब्दुल कय्यूम साहब हो या खजांची हो या तुम जैसे बेवकूफ हो, उनको छोड़ दीजिए। अब मैं पूछ रहा हूँ, वो 12 में जो गोश्त ज़िबा करता है वो कौन करता है? 12 में गोश्त ज़िबा कौन करता है? गोश्त ज़िबा कौन करता है? किससे आप गोश्त लेते हो? मैं सबसे पूछ सकता हूँ, जो सर के बदतमीजी करेगा सरकार आला की शान नहीं, ये बताओ गोश्त किससे लेते हो 12 में? बकरे का गोश्त किससे लेते हो? मुर्गे का किससे लेते हो? बड़े का किस? 12 में जो गोश्त बेचते हैं वो सब देवबंदी हैं कि नहीं? तो चाहे इतने देवबंदी हो, मैं कह रहा हूँ अशरफ अली नहीं, गोश्त क्यों खाते हो फिर आप? गोश्त क्यों खाते हो? तुम जानबूझकर 12 में तो सबकी रिश्तेदारियां हैं, देवबंदियों में लड़कियां हैं। 12 में तो देवबंदियों की लड़कियां गई हैं 12 से बड़े सुन्नियों की। पहले एक बात तुम क्लियर करो, पहले मुसलमान होना पड़े साबित करो। नहीं, ये बताओ देवबंदियों की लड़कियां जो 12 में गई हैं सुन्नियों की, वो उसका क्या होगा? रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? जो चाहिए ये रिश्ता हो या ना हो, वो ऐसी बात है नहीं। जो 12 की लड़की छबड़ा में गई है, छबड़ा में गई है, छबड़ा में सब देवबंदी हैं। लड़की क्यों? छबड़ा में सब देवबंदी है। जो 12 की लड़की छबड़ा में गई, उनका रिश्ता हुआ कि नहीं? निकाह हुआ कि नहीं? अगर उनको बराबर था तो ये पार्टी हमसे अलग ना होती, दोनों मुसलमान रहते, दोनों इस्लाम रखते, दोनों। नहीं, ये बताओ आप अगर देवबंद वालों को मुसलमान नहीं मानते तो वक्फ बिल के मसले में क्या है आपका नजरिया? हमारा वक्फ बिल चूल्हे में जा, हमें करना क्या है? नहीं, वक्फ देवबंदियों का भी है, बना रहे। नहीं फिर ये क्या पास वक्फ बिल सही पास हुआ है? फिर देवबंदियों का खत्म हो जाएगा तो वक्फ बिल, देवबंदियों का जो वक्फ है खत्म हो जाएगा ठीक है? मुसलमान क्यों मानते हो? पहले तुम आप खुद मुसलमान मानते हो, आप भी मुसलमान मानते हो देवबंद वालों को, आप भी मुसलमान मानते हो, आप भी देवबंद वालों को मुसलमान मानते हो। मैं साबित कर दूंगा। बेवकूफ बनाते हो तुम। नहीं, आप भी मुसलमान मानते हो। किसको? देवबंद वालों को। झूठ बोलते हो तुम। नहीं, अभी मस्जिद में कोई बात आ जाए देवबंद वालों की तो आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हम जरूर बोलेंगे। क्यों बोलोगे? इसका तो मुसलमान मान लो, मुसलमान मान लो। मस्जिद पे बात आ जाएगी 12 में, किसी मस्जिद में भोला शहीद की मस्जिद में कोई बात आ गई भैया 12 भाई की, तो आप बोलोगे कि नहीं? हम कह रहे हैं कहीं की बात आ जाए, ये सब बातें होंगी। नहीं, जब मुसलमान नहीं मानते तो फिर क्यों बोल रहे हो? बोलने का क्यों कहा? इसका मतलब तुम्हारा दिल मुसलमान मानता है, जबान काफिर कह रही है, दिल मुसलमान मान रहा है कि हाँ मुसलमान है, बोलेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर कोई सरकार अच्छा 12 में किसी देवबंदी की मॉब लिंचिंग हो गई, किसी देवबंदी की मॉब लिंचिंग हो गई, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई सरकार के सामने तो नहीं, ये बताओ अगर देवबंदी की मॉब लिंचिंग हो गई तो बोलोगे कि नहीं? वहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, कोई सरकार की तौहीन करे तुम बोलोगे या नहीं बोलोगे? काफिर है देवबंद, जो भी गुस्ताखी करे काफिर है, कोई भी गुस्ताखी करे काफिर। क्या कभी आपने देखा गुस्ताखी करते सुना? नहीं, कभी आपने सुना? कभी आपने सुना गुस्ताखी करते हुए देखा? आपने देखा गुस्ताखी करते हुए देवबंदियों को? हाँ, मैंने देखा। कहाँ देखा? जब मुस्लिम नूर की किताब बोल रही है। नहीं, उसके सुना आपने, जबान से सुना उसकी? हम उसकी जबान से उस वक्त सुनते जब हम उसके हम असर होते, वो हमसे पहले हो गए। नहीं, आपने सुना, आपने अपने कानों से सुना, अपने कानों से सुना। रुक जाइए, आप शैतानों गुस्ताखी करते हैं और सरकार के नहीं, ये बताओ कानों से सुना। अच्छा, जो ये लिखे कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। तुम उनको जोला नहीं जानते। मैं पूछ रहा हूँ, तुम आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हयात थे? नहीं, ये बताओ अब अगर कोई ऐसा लिखे कि जो नहीं, अगर कोई ऐसा लिखता है कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं, ऐसा लिखने वाला क्या है? रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए, शब्बाशी का मतलब क्या होता है? क्यों शब्बाशी का मतलब क्या होता है? किसने देखा शब्बाशी करते? देखा किसने? रुक जाइए, शब्बाशी अब ये कह दो ना कि हमारे आला हजरत ने लिखा है तो हम मानेंगे। कुछ भी लिखे, आला हजरत ने लिखा है, मलफूज में लिखा है, सफर 27 जिल्दों में लिखा है, क्योंकि आला हजरत ने लिखा है तो मानोगे। तुमने शब्बाशी जुमला किया, जिल्द सोम सफर 27 में लिखा है। और आला हजरत के पढ़ो, सफर 22 जिल्दों में पढ़ो कि जो नबी की इमामत करे, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम बने और दावा करे कि हाँ मैंने नमाज पढ़ाई, सफर 22 लिखो। फाजिल बरेलवी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जिस जनाजे में मौजूद थे वो नमाज जनाजा मैंने पढ़ा, यानी अल्लाह के रसूल के इमाम बन रहा है। सफा 22 जिल्दों में देखो, अल्लाह के रसूल के इमाम बन रहा है फाजिल बरेलवी। सफा 22 जिल्दों पढ़ो। मतलब क्या लेते हो? शब्बाशी माने रात गुजारना। तो जब रात गुजारना है तो उसमें क्या बुरी बात है? कभी आपने देखा, किसी साहबा ने देखा ऐसा? किसी साहबी का कौल है? मैं ये पूछ रहा हूँ, तुमने नहीं, ये बताओ किसी साहबी ने ऐसा कहा? क्या तमाम साहबा ने हमारे नबी की बीवियों को देखा? तमाम साहबा ने हमारे नबी की बीवियों को देखा है? नहीं देखा, बात नहीं, बात है सब। कैसे देख लिया? ये बाद वालों ने कैसे देख लिया? शब्बाशी करते हुए बाद वालों ने कैसे देख लिया? नहीं, ये बताओ बाद वालों ने कैसे देख लिया? नहीं, बाद वालों ने कैसे देखा?
तो मैंने बिल पास होते मौके पर नहीं, आलम बरज़ख की बात को कैसे देख लिया कि अंबिया किराम की कब्रों उनकी बीवियां जा रही हैं? वो तमाम नबियों की बीवियों को देख लिया। तमाम नबियों की बीवियों को कौन देख रहा है? तमाम नबियों की बीवियों को कौन देख रहा है कब्रों में जाते हुए? किसी के देखने की वो जरूरत ही क्या है? ये तौहीन है कि नहीं है? बिल्कुल तौहीन नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि आला हज़रत ने लिखा तो तौहीन नहीं है। यही बात थानवी साहब लिख देते तो तौहीन है। यही बात अगर थानवी साहब लिख देते तौहीन है और आला हज़रत ने लिख दिया तो तौहीन नहीं है। और जो नबी की इमामत करे, जो ख्वाब में कहे कि मैंने नमाज जनाजा पढ़ाई सफा बाई जल्दों में, हाँ ये नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई और उसमें इत्तेफाक सरकार तस्लीम लाए थे, तुम्हारी हिम्मत हो कुफर का फतवा लगा दो। नहीं तो अब यही बात थानवी साहब कहते तो काफिर कहते आप उसको। थानवी साहब ने ये बात नहीं कही। थानवी साहब ने ये कहा कि बाज़ उलूम गैबिया में हुजूर कोई तखसीस नहीं है। ऐसा हम नहीं मानते उसको, हम नहीं मानते। उन्होंने इबारत बदलने का कह दिया था, उससे तौबा कर ली थी, रुजू कर लिया था उस बात से। उन्होंने किस बात से रुजू कर लीजिए? उससे रुजू कर लिया था कि ये इबारत बदल दो। ये किसने रुजू किया था? ये मंजूर नोमानी साहब जो उनके शागिर्द थे ना, उनसे कहा कि तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि तुम इस बात को बदल देना। आपने अभी कुछ कहा अभी उन्होंने तौबा कर ली थी, रुजू कर लिया। हाँ, वो तौबानामा छपा है, तौबानामा छपा है, आपको भिजवा देंगे, तौबानामा छपा है। हाँ लाइए दिखलाइए जरा इसी में। और इस्माइल दहलवी के बारे में फाजिल बरेलवी ने कहा कि मुझे काफिर नहीं कहेंगे कि उसकी तौबा हम तक आ चुकी है। इस्माइल दहलवी की तौबा नामा डलवा दीजिए इसी मोबाइल पर जब देखते हैं। हाँ मैं भिजवा दूंगा, इंशाल्लाह भिजवा दूंगा। कब भिजवा दोगे? और आप 12 में कौन से महल्ले में हैं जी? कौन से महल्ले में रहते हो? 12 में? अरे हमारा पूरा 12 यार, महल्ला कितना छोटा सा गाँव, महल्ले और नहीं कौन से महल्ले में? कभी हम आएंगे तो मुलाकात करें ना आपसे 12 में आके। अब तुम कभी ना आ पाओगे। तुम क्या अशरफ अली तुम काफिर मानते नहीं मानते? नहीं ये बताओ 12 में कौन से महल्ले में? वहाँ आके मुलाकात करेंगे ना आपसे, मुलाकात कर लें कभी 12 आए तो। तुम कभी ना आओ मुलाकात करने के लिए? नहीं कैसे नहीं आएंगे? आप अपना पता बताओ ना। कोशर कॉलोनी में रहते हो, काला पाड़ा में रहते हो, मेला पाड़ा में रहते हो, कौन से महल्ले में रहते हो? जरा बताओ, डर कर रहो, डरो मत इतना। मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, उस पर पता पूछने की जरूरत नहीं है। शर्मिक कॉलोनी में रहते हो, डरो मत इतना। कोई कॉलोनी नहीं है, मैं डरूंगा क्यों? डरो मत। कॉलोनी यहाँ नहीं, सियात है ये। नहीं डरो मत। मैं क्यों डरूंगा? ये बताओ, हजरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल पास करवाया, हजरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सही करवाया कि नहीं? मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मुझे बिल से कुछ लेना क्यों नहीं कह रहे? कहो, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं हूँ मैं, जिस बात में जानता नहीं हूँ। हजरत हैं वो, मोहतरम है, हजरत हैं, प्रधानमंत्री हैं, हजरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिब। अदब से नाम लो उनका। हम अदब से नहीं, हम ना अदब से नाम लेने की बात कर रहे हैं, ना बेअदबी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उनकी बात उस वक्त करेंगे। तो अपने वक्त का आप प्रधानमंत्री तो मानते हो? काफिर है, तुम उसको काफिर क्यों नहीं मानते हो? तो हजरत प्रधानमंत्री क्या काफिर मानते हैं थानवी साहब को? था उनसे उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो भी तो देश के प्रधानमंत्री है, वो तो हमें मुसलमान मानते हैं, वो क्यों हमें काफिर नहीं मानते? तो मैं वो कुछ मानते हो, वो बहस छोड़िए। वो तो हमारे प्रधानमंत्री है ना, वो तो हमें मुसलमान मानते हैं, वो तो अहले हदीस को ही मुसलमान मानते हैं, शियाओं को ही मानते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया? तो वो हमें हमारे देश के ना, देश के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, चैनल बंद कर दो। तुम्हारी खुराफात बहुत आगे बढ़ चुकी, तुम्हारे पास पूंजी कुछ भी नहीं है, बेलवजह देश के हिसाब से चलो। आप भी देश के हिसाब से चलो, प्रधानमंत्री साहब को मानो। हम कह रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी की यहाँ कोई बात नहीं, बात हो रही धार्मिक अशरफ अली। अच्छा बताओ, उन्होंने वक्फ बिल को जो पास करवाया, वक्फ बिल को जो पास करवाया लोकसभा से विधानसभा, वो सही करवाया कि नहीं करवाया? तुम नंबर 1 के कज़्ज़ाब फराडिया लोग, झूठे। तुम नहीं ये बताओ, प्रधानमंत्री से क्यों डर रहे हो? इतना डर क्यों रहो प्रधानमंत्री साहब से? आप तुम कितने बड़े शेर हो? तुम इतना हक मगर मार रहे हो, नाम तक नहीं ले रहे हो। अशरफ अली ने हक कुफ्र किया था। अच्छा, और किसी ने नहीं किया? इस्माइल दहलवी और ये अभी जो इसमें, और ये हम्माद रज़ा ने कुफ्र नहीं बका, जिसने कहा कि फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था। हम्माद रज़ा ने कहा तमाम सैयद क़यामत में आला हज़रत को ढूंढेंगे। और एक ने कहा, पीर ने कहा, गुलजार मियां साहब ने, मखौली वालों ने कहा कि मुझे हज़रत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे तो आला हज़रत पर नाज है। जो तुम्हारे पीर ये कहे कि मुझे हज़रत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे तो आला हज़रत पर नाज है, ऐसे पीर को तुम मानते हो? तो तुम्हारे पीर एक बिलग्राम में कह रहे थे कि आला हज़रत को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि अहमद रज़ा तुम खड़े हो जाओ दीन के लिए। ये इन्होंने कब सुना? बिलग्राम के पीर साहब जो कह रहे थे एक जलसे में, तकरीर में, कि अल्लाह के रसूल ने आला हज़रत को हुक्म दिया कि अहमद रज़ा तुम खड़े हो। ये 1300 साल के बाद इन्होंने अल्लाह के रसूल की आवाज कब सुनी? बिलग्राम के पीर साहब कह रहे थे एक तकरीर में। कर लीजिए आप। और एक मसौली के पीर साहब कह रहे हैं कि मुझे हज़रत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे तो आला हज़रत पर नाज है। उन्हीं से बात कर लीजिए जिन्होंने कहा। तो जब आला हज़रत इतने बड़े आशिक रसूल हैं तो उनका एक इमाम क्यों नहीं है मस्जिद नबवी में? हरम शरीफ में इमाम क्यों नहीं है? उनका मुअज्जिन क्यों नहीं है? तो हम कैसे यकीन कर लें? खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया। आला हज़रत ने कहा दोनों जहां आपके कब्जा और इख्तियार में, मैं तो मालिक ही कहूंगा, हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा।
یہ تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا جب تمہارے مولوی نے کہا تھا جس کا نام محمد علی کسی چیز کے مختار نہیں. تو اب کیا یہ بتاؤ ابھی کیا اللہ کے رسول صاحب اختیار نہیں ہے؟ اس وقت استعمال کیا کیا اللہ کے رسول ابھی صاحب اختیار نہیں ہے؟ مل گئے قرآن میں ماتا کو رسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، جو رسول تمہیں کہہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ. بک بک کرتے ہوئے آتا جاتا کچھ نہیں ہے. اتنی بکواسیں کرتے ہوئے فضول لوگوں کو گمراہ کر رہے، بند کر دو تم یہ سب بکواسیں. یہ بتاؤ آپ اللہ کے رسول کو صاحب اختیار مانتے اور وہاں کے امام کو مسلمان نہیں مانتے؟ تو کائے کا تمہارا ایمان ہے یار، کائے کا ایمان ہے جب حرم شریف کے امام کو تم مسلمان نہیں مانتے؟ ارے حرم شریف کھاتا کیا؟ ہم شیطان کو کافر نہیں مانتے، وہ تمہارا بھیا ہے. نہیں یہ بتاؤ حرم شریف کے امام کو تم مسلمان نہیں مانتے، تم مسجد نبوی کے امام کو مسلمان نہیں مانتے، تم حج کرنے کیوں جا رہے ہو؟ حج کرنے کیوں جاتے ہو؟ قربانی کیوں کرتے ہو؟ جب مر جائے گا حاجی کون نماز جنازہ پڑھائے گا؟ کیا فاضل بریلوی کے ماننے والے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں؟ وہیں کا امام نماز پڑھاتا ہے. تمہاری تو نماز جنازہ بھی نہیں ہو رہی، غسل بھی نہیں ہو رہا، کفن بھی نہیں ہو رہا، دفن بھی نہیں ہو رہا. تم تو بغیر دفن کے بغیر غسل کے دفن ہو گئے. تمہاری نماز جنازہ کون پڑھائے گا حرم شریف میں؟ تمہاری قبر کون کھودے گا؟ وہیں کے لوگ کھودیں گے قبر، وہی غسل دیں گے، وہی کفن دیں گے، وہی دفن کریں گے، وہی نماز جنازہ پڑھائیں گے. پھر قربانی کیوں کرتے ہو وہاں جا کر؟ جب وہ لوگ مسلمان نہیں تو وہاں جا کے قربانی کیوں کرتے ہو؟ حجی کرنے کیوں جا رہے ہو؟ حج کرنے کو منع کیا بریلی والوں نے، حکومت میں حج مت کرو، انہوں نے منع کیا. مفتی اعظم ہند نے لکھا ہے کہ جب تک یہ حکومت حج مت کرو. کیوں جا رہے ہو حج کرنے؟ کس نے کہا تم حج کرنے کا؟ جب بریلی والوں نے منع کیا کہ حکومت میں حج مت کرو، کیوں جاتے ہو حج کرنے؟ 12 والوں سے کہو نا کہ مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے، تنویر الحجہ کتاب کا نام ہے، یجوز بالتواء الحجہ، اس حکومت میں حج مت کرو. یہ بھی ہے شرف علی خان بھی کافر جو ان کی حمایت. تو پھر ایک فتویٰ کیوں مانو؟ دونوں مانو نا. ایک فتویٰ کیوں مانو؟ دونوں مانو. جو حج کرنے کو منع کیا وہ بھی مانو. نہیں حج کرنے کو منع کیا وہ بھی مانو نا. ہم سب مانتے ہیں مگر تم ایک ہی مان لو، ایک مان لو. حج کرنے والے تم کیوں حج کرنے جا رہے ہیں؟ انہیں کیوں نہیں روک رہے؟ تم حج کرنے والوں کیوں نہیں روک رہے؟ روکو.